Very good afternoon, everyone. Excellence is not a gift, it is a skill that takes practice. And when it comes to practice, it is what is better than writing. A very warm welcome to all the spectators and auditories present who have taken out their valuable time to attend this webinar. I, Nandita Singh Bhati, as a moderator, welcome you all wholeheartedly. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे, स्पेशली द एज ग्रुप ऑफ 3 to 4 years, they face various problems in writing. Problems like they are not able to hold the pencil properly or they are not taking interest in writing. या फिर बच्चे इतने स्लो राइटर्स होते हैं that this becomes a major concern for their mothers and their teachers as well. So if your child is also facing such problem, then this is the right platform where all your problems and difficulties will be resolved and rectified with a perfect solution. अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. If the time will permit us, we will definitely try our best to solve all your questions. Today's webinar, why is my child not writing? This webinar is going to be very fruitful for you all, as in today's webinar our guest speaker will tell us about some amazing tricks and techniques to be followed which will help your child out in writing. So now I would like to introduce to you all the guest speaker of today's webinar, Miss Aditi Rathore ma'am, Director of Aditi Silver Bells. Miss Aditi Rathore ma'am is an educationist who has been working in the field of education since last 8 years, and she is constantly working on pre-primary and primary sections, focusing on the basic and holistic development of a child. Miss Aditi Rathore ma'am is an educator, an orator and excellent public speaker. इन सभी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी that अदिति राठौर मैम एक कमेंटेबल स्टोरी टेलर भी हैं, जो अपनी लाजवाब स्टोरीज के कारण बच्चों द्वारा बहुत ही पसंद की जाती हैं. Aditi ma'am has her YouTube channel also, so where things and concepts are made much easier and they are taught in a way where it is not taught anywhere else. Like they follow the pedagogy of storytelling. So you can visit to her channel, subscribe her channel if you want to see the stories, plethora of stories of all genre. A very warm welcome, Miss Aditi Rathore ma'am. Ma'am, when it comes to writing, this was the first question which came into my mind, that how important is handwriting according to you? Well, since I'm into storytelling, I would like to start with the story itself, and it is not any fictional story, it is a real life story. So it so happened with me that few months back I happened to visit one of my friend in Jaipur. She has a daughter of 3 years old, and I was invited to stay with her. So during my official visit, I observed that she was facing a lot of problem with her child when it comes to writing. So she asked me for help, that could you please help me? So I said that okay, I will help you, but first I would like to observe कि आप किस तरीके से इसको पढ़ाते हो. I observed for 1-2 days and I got to know the mistakes she was doing while making her child write. And then I thought that writing, though we think that it is a very simple process, if I talk about myself, before opening my school or much before I had my own son, I thought that writing is a very simple process and it won't take much pain. But then soon I realized, after having school and my own son, that if I consider writing, it is as simple as raising your child. तो आज के टाइम में जितना एक बच्चे को बड़ा करना जिस लेवल का काम है, उसी लेवल का बच्चे को लिखाना काम होता है. Also, whatever I am going to say in today's webinar is backed up by researchers. So there has been one research done by the Norwegian University of Science and Technology which says that a child who writes more tends to remember more.
तो जितना ज़्यादा बच्चा लिखेगा, इसीलिए हमें पहले कहा जाता था लिख लिख के याद करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपको उतना ज़्यादा याद रहेगा. यस मैम. Thank you so much, ma'am, for sharing such wonderful experience. Here is my next question, ma'am. That what is a right time to introduce a pencil to a child? This is the most asked questions by most of the parents and by the family members. What is the right time to give pencil to a child? Now, as I say, there is no right time. Some children may start writing as young as 2.5. Others may not write even at the age of 3.5. तो ये कोई इसमें कोई पैरामीटर नहीं है कि इतने साल का बच्चा लिखेगा ही लिखेगा. नाउ अगेन, if I talk about our Indian education system, we start sending our children to school at the age of 2.5. If it is a playgroup, or at the age of 3 in a preschool. तो 3 years से आपका बच्चा हम पेंसिल देना स्टार्ट कर देते हैं, या जो भी प्री रेक्विजिट्स होते हैं राइटिंग के वो हम करवाना स्टार्ट कर देते हैं. बट डॉक्टर्स से कि जो आपकी फाइन मोटर्स जो होती हैं, जो फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं वो तब डेवलप होती है जब बच्चा 4 साल का हो जाता है. हाउएवर वी कैन स्टार्ट डेवलपिंग दो स्किल्स व्हेन अ चाइल्ड इज़ एज यंग एज 18 months old. So there is a complete research again done in this part कि फाइन मोटर स्किल्स कब तक होनी चाहिए डेवलप्ड, एंड उसके कुछ माइलस्टोन्स होते हैं. यस मैम. Ma'am, so as you said that there is no right age to give a pencil to a child, it all depends upon the development of fine motor skills. तो मैम आपने एक ये फाइन मोटर स्किल वर्ड इंट्रोड्यूस किया है, सो आई जस्ट वांट टू नो, कैन यू प्लीज एलैबोरेट व्हाट आर फाइन मोटर स्किल्स? यस मैम, डेफिनेटली. सो व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, जो स्कूल से जुड़े होते हैं, जो प्री स्कूल टीचर्स हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर विद द वर्ड फाइन मोटर स्किल्स. एंड जो न्यूली मदर्स जो हैं, न्यू मदर्स हैं, उनके लिए हो सकता है ये एक टर्म न्यू पॉइंट लग रही हो उनको. फाइन मोटर स्किल्स इज बेसिकली द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर आईज एंड योर हैंड मूवमेंट. तो जो आपकी हैंड की जो मसल्स होती हैं, वो ये जो टाइनी मसल्स जो होती हैं आपकी हैंड की, इनका और आइज़ का जब सिंक्रोनाइजेशन होता है तब वो फाइन मोटर स्किल्स आपकी प्रॉपरली वर्क करती हैं. नाउ इनके लिए देर आर मैनी एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज़ बीइंग डेवलप्ड. मैंने खुद ने अपने यूट्यूब चैनल पे फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़ का एक एलैबोरेट वीडियो बनाया है. यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक फ्रॉम देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स कि कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो. सो एट द टाइम ऑफ 0 to 2 months, जो 2 months का जो बेबी होता है, द 2 months ओल्ड बेबी शुड बी एबल टू होल्ड द रैटल. तो अगर आप उनके हाथ में कुछ भी रैटल या कोई चीज़ देंगे तो वो पकड़ लेगा. नाउ 6 months का जो बेबी होता है, दैट बेबी इज़ एबल टू होल्ड द रैटल, पिक द रैटल एंड होल्ड इट विद बोथ हैंड्स एंड कैन शेक द रैटल. तो ये एक माइलस्टोन होता है. अगर 6 months का बेबी इतना कर रहा है, इसका मतलब उसकी फाइन मोटर स्किल्स सही डेवलप हो रही हैं. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट 9 to 12 months ओल्ड बेबी, तो ये जो बच्चे होते हैं, दे आर एबल टू होल्ड बॉटल्स एंड दे आर एबल टू ड्रॉप समथिंग इन अ ब्रॉड वेसल, जैसे कि कप में या ग्लास में. अगर आप इनको बीड्स या कुछ भी चीज़ें दोगे तो दे वुड बी एबल टू ड्रॉप इट. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट 18 months ओल्ड बेबी, तो 18 months के जो बच्चे होते हैं, दे आर एबल टू इंसर्ट दोज पजल्स, जैसे कि आजकल मार्केट में काफ़ी वुडन पजल्स आती हैं. तो दोज बेबीज़ आर एबल टू इंसर्ट दोज पजल्स एंड दे कैन डू स्टैकिंग एज वेल. तो ये अगर माइलस्टोन एक बच्चा पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है, या अगर इन माइलस्टोन्स तक रीच कर रहा है, देन वी बिलीव कि एक बच्चे की मोटर स्किल्स अच्छे ढंग से डेवलप हो रही हैं. Now apart from this, I would like to elaborate some fine motor skills activities to you. सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सैंड प्ले करवाइए. जो बच्चा मिट्टी के साथ खेलता है, मिट्टी में खेलता है, भले वो मिट्टी को गीला करके कुछ शेप्स बना रहा है या वो कोई भी एक शेप दे रहा है उस चीज़ को, उस बच्चे की न सिर्फ मोटर स्किल्स अच्छे से डेवलप होती हैं, बट उसकी जो आयरन की जो अपने बॉडी में जो आयरन की डेफिशिएंसी होती है वो भी
पूर्ति होती है उस चीज़ की। तो सबसे पहले आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपने बच्चे को बॉटल दे दी कि सैंड को इस बॉटल में आप भरो, या आपने मिट्टी को गीला करके आपने उनको कुछ पजल्स दे दिए कि आप इसमें मिट्टी को डाल के कुछ शेप बनाइए। तो फर्स्ट तो हो गया सैंड का। सेकंड आता है चॉक एंड स्लेट। तो आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चॉक्स दीजिए। चॉक से भले वो ऐसे पकड़ रहा है या ऐसे पकड़ रहा है, वो कैसे भी पकड़ रहा है, उसे स्क्रिबल करने दीजिए। थर्ड इज़ क्रेयॉन्स। क्रेयॉन्स को आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कराइए, स्पेशली जो इस तरीके के जो क्रेयॉन्स होते हैं, ये जो ट्राईपॉड जो क्रेयॉन्स होते हैं, अगर आप बच्चों को ये इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उनकी ग्रिपिंग अच्छी बनेगी। आप पतले क्रेयॉन्स दे देंगे, बच्चे की ग्रिप इतनी अच्छी नहीं होती है, वो या तो टूट जाएंगे या बच्चा उनसे नहीं खेल पाएगा। तो what you can do, you can take a newspaper, give those crayons, ask them to scribble. वो scribble करेंगे, then ask your kids to tear the newspaper, crumble it as small as they can, and then make a ball and then throw it. तो थ्रो करेंगे, उनको बड़ा मज़ा आएगा। देन आस्क देम टू पिक दोज बॉल्स यूजिंग काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 एंड देन आस्क देम टू पुट देम इन बिन। तो ये एक एक्टिविटी हो गई। देन देर इज़ क्लॉथ पेन एक्टिविटी जो ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स कराती हैं, इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। यू कैन गिव स्मॉल क्लोथ्स लाइक सॉक्स, हैंकीज, बच्चों के ही कपड़े आप उनको दे दीजिए, एंड देन आस्क देम टू हैंग ऑन वायर एंड देन पुट द क्लॉथ पेन। तो वो जब क्लॉथ पेन को पुश करके जब उसे ओपन करने की कोशिश करेंगे, अगेन दीज मसल्स विल वर्क। यू कैन गिव स्मॉल टोंग्स, कि टोंग्स आपने दे दिए जो आइस बॉक्स में जो छोटे टोंग्स होते हैं, और आप उन्हें एक बोल में चना एंड राजमा दीजिए एंड आस्क देम टू सेपरेट ब्लैक फ्रॉम वाइट। अगेन दिस विल हेल्प इन डेवलपिंग मोटर स्किल्स। इसके अलावा आप 2 बोल ले लीजिए, एक बोल में आप कलर्ड वाटर भर दीजिए एंड गिव देम अ पीस ऑफ स्पॉन्ज। नाउ आस्क देम टू डिप द स्पॉन्ज and then squeeze it in another bowl. इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे टॉयज़ मार्केट में अवेलेबल हैं जो स्ट्रेस बस्टर टॉयज़ होते हैं, ये आप बच्चे को दे सकते हैं। वो इस तरीके से जब इनसे खेलते हैं स्क्विशी बॉल्स या टॉयज़ से, तो इनकी मसल्स बहुत जल्दी स्ट्रेंथन होती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज़। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सरसाइजेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एक्सरसाइजेस आप उनसे मॉर्निंग में या इवनिंग में या आफ्टरनून में कभी भी 3-4 मिनट्स के लिए करवाइए एंड यू विल सी अ ग्रेट डिफरेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क देम टू ओपन एंड देन क्लोज देयर फिस्ट। आस्क देम टू ओपन एंड क्लोज देयर फिस्ट। देन आस्क देम टू टच देयर थंब टू ईच एंड एवरी फिंगर। इस तरीके से आप उनको टच करने के लिए बोलिए। ये उसके बाद में आप उनको बोलिए कि नाउ यू मेक L लाइक दिस यूजिंग दीज 2 फिंगर्स एंड थंब, और किसी स्टर्डी सरफेस पे आप उनको बोलिए कि आप इस तरीके से फ्रॉगी क्रॉल करवाइए। सो दीज आर फ्रॉग्स एंड दे वांट टू क्रॉल, तो आप उस तरीके से फ्रॉगी क्रॉल करवाइए आप उनको किसी स्टर्डी सरफेस पे, या वॉल पे भी आप उनको ट्राई करवा सकते हैं। वन मोर एक्सरसाइज इज दैट कि आप बच्चे को बोलिए कि अपने दोनों एल्बोज को ज्वाइन करें क्रॉस में रखकर, एंड देन आस्क देम टू मेक क्रोकोडाइल्स माउथ एंड देन स्नैप इट। तो ये सारी फिंगर्स और थंब एक दूसरे से मिलने चाहिए लाइक दिस। इससे क्या होगा, उनकी जो शोल्डर बोन्स होती हैं और जो बैक बोन होती है वो अपराइट रहेगी, एंड देन दिस होल थिंग विल वर्क प्रॉपरली। इसके अलावा देयर इज़ वन वेरी गुड एक्सरसाइज विच आई पर्सनली लाइक। ये आप इतना छोटा सा रबर बैंड्स जो होते हैं वो आपके बच्चे के यहाँ पे आप उनके फिंगर्स में ऐसे बांध दीजिए। अब आप उनको बोलिए ना ओपन योर फिंगर एंड क्लोज इट, ओपन एंड क्लोज इट, और ये आप इनको इस तरीके से आप नीचे की तरफ रख के ऐसे कराइए तो रबर बैंड ऊपर नहीं जाएगा। ओपन एंड क्लोज इट। नाउ दिस विल अगेन टेक एफर्ट टू ओपन and close it, which in turn will again strengthen your fine motor skills. So if you follow these exercises and these techniques and activities, definitely your child's fine motor skills, which is prerequisite of writing, will be fulfilled. Yes ma'am. थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही सारी एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेज बताई एंड आई हार्डली नोटेड डाउन 1 or 2. So I would like to tell the audience that the recording of this video will be uploaded on ma'am's YouTube channel. So if you can subscribe that channel for such informative videos. Ma'am, I have seen that when we introduce a pencil to a child, जब सबसे पहले बच्चे को पेंसिल दी जाती है, he or she holds the pencil in altogether different way.
So here is my next question, that how to make a child hold a pencil in a correct way. Okay, so what happens, most of the mothers जो प्री स्कूल टीचर्स हैं उनको पता है कि क्या, जैसे मैंने आपको बताया, प्री रिक्विजिट्स होते हैं, बट कई बार टीचर्स भी गलती करते हैं एंड दे डायरेक्टली गिव अवे द पेंसिल टू द चाइल्ड. उससे पहले आपको फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटी करवानी है, ऑफ कोर्स, वन थिंग. सेकेंडली, कि जब आप पेंसिल दे रहे हैं देन यू मेक श्योर कि आपकी जो पेंसिल हो वो इस साइज़ की हो. So I have developed a technique called TRFT, that is Truft, that is 3 rules and 4 tricks. Using these 3 rules and 4 tricks, we are working on our school kids and we have seen tremendous improvement. तो डॉम्स की एक ऐसी पेंसिल आती है जिनकी ट्राइपॉड ग्रिप होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब ये जान लें कि जब हम लिखते हैं पेंसिल से तो हमें हमेशा ट्राइपॉड ग्रिप का ही यूज़ करना पड़ता है. नाउ व्हाट इज़ ट्राइपॉड ग्रिप? ट्राइपॉड ग्रिप होती है जो हमारी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब से मिल के बनती है. नाउ ये तो रही ट्राइपॉड ग्रिप, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं पर्ली क्यू. पर्ली क्यू जहाँ पे पेंसिल रेस्ट करनी चाहिए. अगर आपकी ये ट्राइपॉड ग्रिप है एंड आपकी पेंसिल पर्ली क्यू पे रेस्ट कर रही है तो बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होएगी एंड सही तरीके से बच्चा लिखेगा. तो द फर्स्ट थिंग इज़ ट्राइपॉड ग्रिप वाली आप पेंसिल्स दीजिए. ओके, फर्स्ट रूल. सेकेंड इज़ कि जब आप बच्चे को पेंसिल दे रहे हैं द साइज शुड बी ओनली दिस मच. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? एक बड़ा पेंसिल लीजिए, उसे 2 टुकड़ों में डिवाइड करिए, शार्पन करिए और आप बच्चे को दीजिए. जब बच्चा इस पेंसिल से वर्क करेगा तो ये छोटी पेंसिल है, इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे को लिखने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप बड़ी पेंसिल देते हैं तो उसके वेट के कारण बच्चे की हैंडराइटिंग स्पॉइल होती है एंड बच्चे का हाथ बहुत जल्दी पेन होने लग जाता है. इसलिए ऑलवेज गिव स्मॉल पेंसिल. एंड रूल नंबर 3, यू शुड ऑलवेज आस्क योर चाइल्ड टू होल्ड द पेंसिल फ्रॉम द शार्पन्ड एज. न ऊपर से न नीचे से, जहाँ से शार्प हुई हुई है पेंसिल ठीक वहाँ से आप बच्चे को पेंसिल होल्ड करना सिखाएंगे. तो ये तो थे 3 रूल्स, दैट इज़ ट्राइपॉड ग्रिप, स्मॉल पेंसिल एंड शार्पन्ड एज. अब इसकी 4 ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ. सी, मार्केट में आपको अमेज़ॉन पे इस तरह के ग्रिपर्स मिलेंगे. इफ़ यू कैन सी, सॉरी, यस, यू कैन सी दीज ग्रिपर्स. सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर बच्चे की ग्रिपिंग इतनी अच्छी नहीं बन रही है तो आपको सिर्फ इसमें पेंसिल इंसर्ट करनी है. यहाँ पे एक ग्रोव है, डिप्रेशन है. उससे क्या होगा कि आप जब बच्चे को इस ग्रोव के ऊपर, तो आपको थंब रखने को बोलना है और यहाँ पे आपको अपनी फिंगर इंसर्ट करवानी है एंड देन आस्क द चाइल्ड टू राइट. दिस इज़ वन वे. ओके, आप इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं. अगर बच्चे के थंब होल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रिपर में आप थंब भी डलवा सकते हैं. अगर नहीं तो थंब को इस डिप्रेशन पे रखने के लिए बोलिए एंड देन आस्क देम टू राइट. वन ट्रिक. सेकेंड ट्रिक ये होती है कि इस तरह का रबर बैंड जो होता है, जो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, वो आप बच्चे के हैंड में इस तरीके से बांध दीजिए. आप उसे पेंसिल दीजिए एंड इस रबर बैंड में आप एक नॉट इस तरीके से ट्विस्ट करिए और इसको यहाँ पे पेंसिल पे ये लगा दीजिए. ऑटोमेटिकली पेंसिल आपकी पर्ली क्यू पे रेस्ट करेगी. ये ज़्यादा टाइट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए. और जब ये यहाँ पे पर्ली क्यू पे रेस्ट करेगी तो उसको यहाँ से ग्रिप अपने आप मिल जाएगी. उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ग्रिपिंग अपने आप बन जाएगी. नाउ नंबर 3 इज़, हम हमेशा बच्चे को बोलते हैं कि ये दिस इज़ फ्रॉगी वॉकिंग एंड हॉपिंग. तो फ्रॉगी हॉप कर रहा है और ये हॉप करते करते आप इस तरीके से पेंसिल रखिए. सपोज दिस इज़ द टेबल, सो यू शुड कीप द पेंसिल, द टिप शुड बी ऑपोजिट ऑफ द चाइल्ड. तो जैसे यहाँ पे बच्चा बैठा है, ये पेंसिल आपने रख दी. आस्क देम टू होल्ड द पेंसिल लाइक दिस. बच्चे ने पेंसिल पकड़ी एंड देन यू फ्लिप द पेंसिल. अगर देखिए बच्चा ऐसे पेंसिल पकड़ेगा एंड देन यू व्हाट यू हैव टू डू इज़ फ्लिपिंग द पेंसिल. यू जस्ट फ्लिप द पेंसिल, इसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रिप बन जाएगी. आई विल शो यू वंस अगेन. आस्क द चाइल्ड टू होल्ड द पेंसिल लाइक दिस विद दीज 2 fingers here and like this, and then you like this, and then you flip the pencil with the pincer grip. थंब और इसकी मदद से आप इसको पेंसिल यूँ होल्ड करवाइए और आप पेंसिल को फ्लिप कर दीजिए. दिस इज़ फ्लिपिंग द पेंसिल. एंड द लास्ट ट्रिक इज़, एंड दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, यू कैन टेक प्ले डो या कॉटन बॉल, इस तरीके से आप लेके
बच्चे की ये जो 2 फिंगर्स होती हैं यहाँ पे रख के और इसको आप ऐसे बंद करवा दीजिए. अब only these 3 fingers are working. Now ask your child to hold the pencil with these 3 fingers. These 2 fingers will be closed. और ये इस तरीके से जब बच्चा पकड़ के लिखेगा, keeping in mind that he is holding the pencil from the sharpened edge, तो अपने आप उनकी grip बनेगी. With these techniques आप अपने बच्चे को लिखने की, पेंसिल होल्डिंग करवाने की आदत डलवा सकते हैं. एंड यू कैन मेक देम स्क्रिबल और राइट और एनीथिंग यूजिंग दीज 3 rules and 4 tricks. Yes, ma'am. Wow, ma'am, wonderful. This TRFT rule was amazing. And I'm sure that this was something which was not earlier paid attention to. So now, ma'am, बच्चे की fine motor skills develop हो चुकी है. He has understood how to hold the pencil. He has started writing. But then also, ma'am, he is not taking interest in writing. So here is my next question, that how to cajole a child to write? Very true. So, when it comes to motivate or cajoling a child to write, just tell me one thing. How many of you really want your child to write like really fast? कि बस फटाफट वो लिखना शुरू हो जाए. Type I in the chat box. How many of you want your child to write really fast? Type I. Okay. So now if I say about cajoling a child, the first thing is, सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आप बच्चे को किस टाइम पे पढ़ने के लिए बैठा रहे हैं या किस टाइम पे आप उसे राइटिंग के लिए बोल रहे हैं. सबसे पहले हर बच्चे की बॉडी क्लॉक अलग होती है. सपोज इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमन और यू आर अ होम मेकर, अगर हमारी बात करें, वर्किंग वुमन या होम मेकर्स जनरली दोपहर के टाइम में, आफ्टरनून टाइम में बच्चे को, जब वो अपने काम से फ्री होते हैं, तब बच्चे को लेके वो बैठना चाहेंगे. आप खुद सोचिए, तब तक बच्चा मॉर्निंग से आफ्टरनून तक जिस तरीके से आप टायर्ड हो चुके हैं, उस तरीके से वो बच्चा भी पूरी तरीके से टायर्ड हो चुका है. नाउ व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, कि जब उसको आप लिखने बैठा रहे हैं, तब तक आप भी टायर्ड हैं, बच्चा भी टायर्ड है, और उस चीज़ में हम रश करते हैं. हम बोलते हैं चलो चलो फटाफट लिखो, ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए, तुमने गलत लिखा है, और ऐसे करके थोड़ी सी देर में हम वो चीज़ को पूरा स्पॉइल कर देते हैं. तो राइटिंग हमने कैसे प्रेजेंट करी है? बहुत ही नेगेटिवली. कुछ मदर्स होती हैं जो मॉर्निंग में बैठाते हैं बच्चों को, वो बच्चे थोड़ा फास्ट लिखते हैं, हालांकि उनको मोटिवेट करने में उनको भी टाइम लगेगा. बट my thing is that a child should have proper sleep and rest when it comes to handwriting. Number 1, you have to take care of your child's body clock, कि बच्चा कब एक्टिव रहता है. हर बच्चे का एक्टिवनेस लेवल अलग होता है. कई बच्चे मॉर्निंग में एक्टिव होते हैं, कई बच्चे इवनिंग में एक्टिव होता है. तो जब आपका बच्चा एक्टिव एंड इन गुड मूड हो, व्हेन इट कम्स टू स्मॉल चिल्ड्रन, तब आप बच्चे को लिखने बैठाएं. दूसरा, एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ अ प्रोसेस, और एक प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं. जस्ट इमेजिन हाउ मेनी ऑफ योर राइट हैंड इज़ अ डोमिनेंट हैंड. लाइक आई एम अ राइट हैंड, माई राइट हैंड इज़ डोमिनेंट हैंड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू का राइट हैंड डोमिनेंट हैंड होगा. अगर मैं आपको बोलूँ कि आप फटाफट अपने लेफ्ट हैंड से एक पेज हैंड राइटिंग करके मुझे दो, वुड यू बी एबल टू? टाइप येस फॉर वाई and N for no in chat box. Would you be able to if I ask you to write with your indominant hand? No. Of course, yes, Vrinda ma'am, Nitika ma'am, Saurabh sir, Meenakshi ma'am, yes ma'am, Seema ma'am. No, we cannot. How could you? तो वही चीज़ बच्चे के साथ में है. For them, writing is a process which will take some time, और इस प्रोसेस को कराने में एज अ मदर, बिकॉज मदर्स ही सबसे ज़्यादा टाइम बच्चे के साथ में बिताते हैं, तो हमें बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि हम उसे किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ, जैसे कि मैंने आपको बोला, राइटिंग के लिए आपने जो फाइन मोटर स्किल्स का जो था प्री रिक्विजिट, वो आपने फॉलो कर दिया. उसके बाद में जब छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं, तो सबसे पहले हम लाइन्स सिखाते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल किड्स. तो हम अपने स्कूल में कुछ इस तरीके के प्रॉप्स बनाते हैं, एंड वी हैव नेम हिम मिस्टर लाइन. So then now we sing, Mr. Line, how do you do? I am fine, how do you do? Now Mr. Line is really active, and देखो वो कैसे खड़ा है. He's standing like
अ स्ट्रेट वॉल, एकदम सीधा कड़ा है, एंड ही वॉन्ट्स टू डांस. कैन यू ऑल्सो डांस लाइक मिस्टर लाइन? So yes, we'll dance, we'll stand straight and we'll dance. We'll make our hand as Mr. Line and we'll make our hand dance. तो हमने स्टैंडिंग लाइन को एक मिस्टर लाइन बना के उसको इंट्रोड्यूस कराया. उसी तरीके से हम मिस्टर लाइन को स्लीपिंग लाइन भी बना देंगे, स्लांटिंग भी बना देंगे, एंड वट एवर विद आवर क्रिएटिविटी. बट हमने एक पटकथा रखी बच्चे के आगे कि हमने ऐसे ही नहीं पेपर और पेंसिल दे दिया, नॉट सिट एंड राइट. वी हैव इंट्रोड्यूस्ड विद सम स्टोरीज, सम मैजिकल ट्रिक्स, कुछ ऐसा कजोल करने के लिए. देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग दीज कलरफुल शीट्स. तो यू कैन सी दीज आर सम ऑफ द कलरफुल शीट्स विच वी आर इंट्रोड्यूसिंग, जिससे कि बच्चा, बिकॉज बच्चों की दुनिया बहुत रंगीन होती है, और अगर आप उसमें डायरेक्ट वाइट एंड ब्लैक दे देंगे, दे वुड नॉट टेक इंटरेस्ट इन राइटिंग. सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग दीज कलरफुल शीट्स जिसमें बच्चा लिखेगा. हम इन शीट्स को लैमिनेट भी कर देते हैं ताकि बच्चा बार बार यूज़ कर सके. उनको नोटबुक में तो करना ही है, बट ये एक आप लैमिनेट करवा के रख दीजिए एंड गिव देम स्मॉल स्केच पेन्स टू ड्रॉ ऑन दैट इज़ इरेजेबल एंड दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. एक ये चीज़ होती है. दूसरी ये होती है कि आप बच्चे को सिर्फ पेंसिल से ही ना लिखने को दें, आप क्रेयॉन्स भी दें. आप स्केच पेन्स के जो छोटे पैकेट आते हैं, जो इतने वाले स्केच पेन्स आते हैं, आप उनसे भी लिखने के लिए दीजिए. नो, यू कैन ऑलवेज डू नेगोशिएशन विद योर किड इन अ विन विन सिचुएशन. अच्छा, ये आपने 3 लाइन्स तो आप स्लांटिंग लाइन पेंसिल से बना दो, फिर 2 लाइन्स हम वापस से क्रेयॉन से बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 लाइन्स हम स्केच पेन से बनाएंगे. दैट वे यू आर इन विन विन सिचुएशन. तो बच्चा भी खुश, आप भी खुश. लेट योर चाइल्ड पिक अप हिज और हर फेवरेट कलर एंड देन स्क्रिबल. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो हम नहीं करते हैं या भूल जाते हैं, आप करके देखिए एंड यू विल सी ट्रमेंडस इम्प्रूवमेंट इन योर चाइल्ड. देन मैम, राइटिंग हमेशा एक पेन पेंसिल के साथ ही नहीं इंट्रोड्यूस होनी चाहिए. यू शुड यूज़ ऑलवेज मल्टी सेंसोरियल अप्रोच. तो आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ में गेम्स खेल सकते हैं, जैसे हम अपने बचपन में करते थे. आप उन्हें बोलिए कि ठीक है, मैं एयर में कुछ चीज़ बना रही हूँ, नाउ यू विल टेल मी व्हाट आई एम मेकिंग. मेक श्योर दैट योर चाइल्ड इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, और इफ ही इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू आर डूइंग मिरर इमेज. आप मिरर इमेज बनाएं, अदरवाइज उसको उल्टा पढ़ेगा. सो अगर आपको मेरा मिरर इमेज दिख रहा है अभी, तो मैं इस तरीके से बनाऊँ कि अभी मैंने क्या लिखा है. कैन यू ऑल गेस व्हाट आई हैव रिटन? कैन यू ऑल गेस इन चैट बॉक्स? Can you please type what I have written? Yes, it is a D, because मैं mirror image शायद आपको दिख रहा है, मैं ये बना रही हूँ. तो आप इस तरीके से आप गेम्स खेल सकते हैं बच्चों के साथ में. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप बच्चे को बैठा दीजिए, आप बोलिए अच्छा ठीक है, आज हम एक गेम खेलेंगे, मैं आपकी बैग के ऊपर कुछ लेटर लिखती हूँ, आप उस लेटर को अपनी नोटबुक में मुझे लिख के बताना. सिंपल, यू जस्ट हैव टू से दिस मच. नाउ स्टार्ट राइटिंग समथिंग लाइक स्टैंडिंग लाइन ही बना दी या ए लिख दिया उनके पीछे, एंड देन अ किड विल राइट कि हाँ ये मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है. सो दैट विल अगेन, तो आप उसको प्रॉपर एक इन्वायरमेंट में नहीं बैठा रहे हैं, आप ऐसे खेल खेल में करवा रहे हैं. थर्ड, आप क्या कर सकते हैं, आप उनको कोडिंग डिकोडिंग के साथ में करवा सकते हैं. जैसे कि आप बोल सकते हैं ठीक है, दीज आर सम चिट्स, अब तुम इसके ऊपर कुछ लिखो और मैं उसका एक्शन करूँगी, तो देखते हैं कि वो सही करा है कि नहीं करा है. जैसे कि हम सब फोनिक्स से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर बच्चे ने लिखा ए, तो हमने ऐसा एक्शन किया, तो वो बोलेगा येस यू गेस्ड इट राइट, इट इज़ ए. सिमिलरली वाइस वर्सा यू कैन डू दिस. रात को सोते टाइम जब हम सब लाइट्स ऑफ कर देते हैं, तो आप अपनी फ्लैश लाइट, जो मोबाइल की जो फ्लैश लाइट होती है, उसको ऑन करके रख दीजिए. जब आप आगे अपने हाथ करेंगे, तो आपके जो वॉल होगी या जो कबर्ड होगी, जो भी आपके बेड के सामने या साइड में होगी, उसके ऊपर आप वापस से एयर राइटिंग करके बताइए. बच्चे बड़ा इन्जॉय करेंगे, बिकॉज दैट ब्लैक शैडो विल बी सीन टू देम. और उससे जब आप करके बताएंगे, दे विल एन्जॉय इट. और सोते सोते भी आप उनका लेटर रिकग्निशन का भी रिविजन करवा सकते हैं बहुत अच्छे से, और राइटिंग के लिए आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं. इसके अलावा देयर इज़ वन मोर मेथड. देखिए, ये इस तरीके के चार्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, विच आई जनरली डू विद माई सन. 1 second, it is not visible, I'll just show it to you.
Okay, can you all see this? So here what I have written Monday to Sunday because I do not miss even a single day when it comes to writing. तो Monday to Sunday मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने 5 stars दे दिए हैं. Now what I do, I basically tell him that आज अगर आपने इतनी राइटिंग करी then I will give you 5 star. तो उसका राइटिंग का जो टाइम होता है वो भी बाउंडेड होता है. इट्स नॉट दैट कि मैंने उसको कुछ भी दे दी राइटिंग और वो उस तरीके से कर रहा है, भले वो 15, 20, 30, 40 कितने भी मिनट्स लगा रहा है. नो, दैट इज़ अगेन टाइम बाउंडेड. तो ये इस तरीके के चार्ट्स हम यूज़ करते हैं. फिर मैं उसको बोलती हूँ, अच्छा मंडे की आज आपने राइटिंग कंप्लीट करी है, इस टाइम में कंप्लीट कर ली. आई गिव आस्क देम, ये दीज आर स्टार स्टिकर्स मिलते हैं बाहर, आस्क देम टू पुट दो स्टिकर्स. तो आज मंडे को तुमने 5 स्टार तुम्हें मिले हैं. इस तरीके से अगर पूरे वीक में अगर 5 times 5 स्टार्स हो गए देन वील गो टू योर फेवरेट प्लेस और वील गो टू द पार्क. या जो भी बच्चे को पसंद है कि आप उसे खेलने के लिए देंगे कुछ देर के लिए, वो आप उस तरीके से कर सकते हैं. नाउ अगेन रिमेंबर, दिस इज़ नॉट ब्राइबिंग. हम ब्राइब नहीं कर रहे हैं, ये एक हम हैबिट डेवलप कर रहे हैं. इसीलिए मैंने 7 days का इसमें टाइम डाला है. हैड इट बीन फॉर 1 day इट वुड हैव टर्न्ड इनटू ब्राइबिंग कि तुम ये करो तब मैं तुम्हें ये दूंगी, वो चीज़ गलत है. लेकिन हम उसे कंटिन्यूसली रेपिटेटिवली ये चीज़ करवा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट ब्राइबिंग, इट इज़ रादर ट्राइंग और मेकिंग एन एफर्ट टू इंस्टिल द क्वालिटी एंड द हैबिट ऑफ राइटिंग. सो दीज आर सम ऑफ द गेम्स विच यू कैन यूज़ for your child to cajole him to write more. Yes ma'am. Yes ma'am, I do believe that with the help of these tips the parents will उनको बहुत ही मदद मिलेगी इन tips से. Here is my next question ma'am, that what are the tips to be followed by the parents whose child has just started writing? Yes. So till now we were talking about child centric approach. अब मैं पेरेंट सेंट्रिक अप्रोच आपको बताती हूँ. अच्छा, आप सबसे पहले तो फाइन मोटर स्किल्स बच्चे की है या नहीं डेवलप्ड, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है. इवन इफ़ योर चाइल्ड इज़ 3 और 4 years old और 5 years old कि उसको लिखते हुए बहुत ज़ोर आता है, तो क्या उसकी फाइन मोटर स्किल्स अच्छे से डेवलप है. सेकेंड थिंग, गो एंड चेक योर चाइल्ड्स आई साइट, क्योंकि छोटे बच्चों की नोटबुक्स में डॉट्स डली हुई होती हैं. तो हमें ये देखना है कि क्या बच्चा, फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, क्या बच्चा उस डॉट को लोकेट कर पा रहा है. नाउ यूजुअली क्या होता है कि जो राइट हैंडेड होते हैं उनकी राइट आई डोमिनेंट होती है और जो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं उनकी लेफ़्ट आई डोमिनेंट होती है. बट कई केसेस में जो राइट हैंडेड होते हैं उनकी लेफ़्ट आई डोमिनेंट होती है, एंड वाइस वर्सा, जो लेफ़्ट हैंडेड होंगे उनकी राइट आई डोमिनेंट होगी, विच विल अगेन एक्ट एज अ बैरियर इन योर चाइल्ड्स हैंड राइटिंग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड चेक दीज स्मॉल थिंग्स कि हम टाइमली बच्चे का एवरी 6 months हम आई चेकअप कराएं. तीसरी चीज़, नाउ यू ऑल टेल मी, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो क्या आप कभी भी कंपैरिजन करते हैं? नाउ बी वेरी न्यूट्रल एंड बी वेरी ट्रूथफुल रिगार्डिंग दिस. या किसी से भी कंपैरिजन करते हैं कि वो इतना फास्ट लिख लेती है या लिख लेता है, या मेरा बड़ा बच्चा तो बहुत जल्दी लिखता था, छोटी बच्ची नहीं लिखती है. इफ़ येस, टाइप येस इन चैट बॉक्स. डू वी डू कंपैरिजन? डू वी ऑफन गेट होल्ड ऑफ दीज थिंग्स? येस वी डू. हमारे हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं हैं, तो हम किस तरीके से 2 बच्चों को कंपेयर कर सकते हैं. इवन द ट्विन्स आर पोल्स अपार्ट. एक ही फैमिली में जो 2 बच्चे जो ट्विन्स होंगे वो भी एकदम अलग अलग होते हैं. तो हर बच्चा अपना टाइम लेके सीखता है, लेकिन उसके लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम कंपैरिजन ना करें. जस्ट इमेजिन योर सेल्फ इन देयर प्लेस. जस्ट पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़ एंड इमेजिन कि आपका कोई कंपैरिजन आपके सिबलिंग से कर रहा है. हाउ वुड यू फील? या आपका कंपैरिजन आपकी, बिकॉज वी ऑल आर फीमेल्स हियर, आपकी किसी जेठानी से या देवरानी से या वट एवर, अगर आपका कंपैरिजन होएगा तो हाउ वुड यू फील? Nobody would like that. Instead of comparison, even if the child is writing one line, you should give him appreciation. Just imagine you have cooked a new dish and you have presented in front of your family, और अगर सब ने appreciate करा, would you not be liking to cook more often?
वी डू, वी ऑल वॉन्ट टू हियर प्रेजेस. जब बच्चा चलना शुरू करता है तब हम कितना मोटिवेट करते हैं बच्चे को, यस वन मोर स्टेप, कम कम कम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. तो वाई नॉट फॉर राइटिंग? कम ऑन, यू हैव डन रियली वेल, बहुत अच्छा लिखा है आपने. यू जस्ट से दीज लाइन्स एंड यू सी मेजर डिफरेंस इन योर चाइल्ड. सो देयर इज़ वन थिंग कंपैरिजन, सेकेंड थिंग रशिंग. क्योंकि हमारे पास में बहुत लिमिटेड टाइम होता है, दीज ऑल आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. तो हम क्या करते हैं, तुम इतना स्लो लिख रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है, एंड देन दैट टर्न इनटू नेगेटिव. और लास्ट में हम कई बार हार्श हो जाते हैं बच्चे के साथ में, हम या उसकी पिटाई भी लगा देते हैं. समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स, विच अगेन बच्चा डरने लग जाता है कि मुझे तो लिखना ही नहीं, मैं लिखूंगा ही नहीं तो मुझे पिटाई भी नहीं पड़ेगी. या हम कई बार परफेक्शन के पीछे भागते हैं, इस लाइन से इस लाइन तक तुमने ढंग से नहीं मिलाया, स्टैंडिंग लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए, बिल्कुल भी ये टेढ़ी मेढ़ी या स्लांटिंग पोजीशन में नहीं होनी चाहिए. ऐसे में बच्चा प्रेशराइज हो जाता है. यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड दीज आर साइकोलॉजिकली प्रूवन एंड आई हैव सीन दीज थिंग्स हैपनिंग विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि परफेक्शन, जो आपके लिए परफेक्शन है, बच्चा अभी उस सीढ़ी पे चढ़ रहा है. सो डू नॉट force him or do not pressurize your child to do everything according to your way. You give time and everything will fall on place. Second thing, हम कई बार राइटिंग को नेगेटिव पनिशमेंट की तरह यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने कोई बदमाशी करी या कुछ चीज़ स्पिल कर दी, कुछ गिरा दिया, गो एंड सिट एंड डू योर राइटिंग पेज. ऐसा कई बार कई मदर्स करते हैं. ये चीज़ नहीं करी ना, बैठ के राइटिंग पेज करो. और हम राइटिंग पेज भी कितना देते, 1 पेज दिस बिग. तो वो राइटिंग को आप एज अ पनिशमेंट यूज़ कर रहे हो एंड देन यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू राइट ऑफन. इट विल नेवर हैपन, नेवर एवर हैपन. देन दिस इज़ वन बिग थिंग जो अननोइंगली हम लोगों ने सबने मिस आउट कर दी है. जब हम बच्चे हुआ करते थे, जब हमारे टाइम में, जब ये वर्ल्ड डिजिटलाइज्ड नहीं था, तब हम क्या देखते थे, मम्मा पापा या ज़्यादातर हमारे दादो सा दादी सा, हमने उनको लिखते हुए देखा है. इज़न्ट इट? टाइप येस इफ़ यू ऑल एग्री. और आज के टाइम में हम लोग कितना लिखते हैं, वट एवर वी हैव टू राइट वी विल टाइप इन आवर मोबाइल, दैट्स इट. पेपर पेन का तो टाइम ही गया, वी डू नॉट राइट. एंड राइटिंग इज़ कंसर्न्ड विद आवर इमोशंस. अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो इमोशंस वेंट आउट नहीं होगा. यू सी ऑल द राइटर्स, दे जनरली स्टिल यूज़ pen and paper because that is how you went out your feelings. तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा लिखे, you being a role model have to set this example that your mother still writes. अभी भी आपके मामा या पापा लिखते हैं, make sure at least imitate in front of them. And it has happened to me that once I wanted to develop this habit of reading in my son, so somebody told me to do the same thing in front of him. I did that unknowingly. जब मैं उसके सामने लेके बैठी, then he asked me, आप भी पढ़ते हो? And I was like, yes. Then that clicked me कि बच्चा भी देख रहा है, they are imitating us. और उसके बाद में मुझे नहीं उसको प्रेशराइज करने की ज़रूरत पड़ी, because he understood that Ma also reads. Similarly, I also have to read. So if you want this thing to happen, you should also write. So these are some of the things, and there's one research factor backed up with this, that children who are often told stories or whose mothers read to them, they develop this habit of writing. because जब आप बच्चे को कोई चीज़ दिखाते हो, बुक्स दिखाते हो या स्टोरीज सुनाते हो, your child starts imagining, तो उसके सारे सेंसेस वर्क करने लग जाते हैं. जब वो इमेजिन करता है तो उसको वो क्रिएटिवली उसको या तो अपने ओरल्स में या अपनी राइटिंग में वो बाहर लेकर आता है. तो जो बच्चे क्रिएटिव राइटिंग करते हैं फर्स्ट सेकेंड ऑनवर्ड्स, वो उनकी इमेजिनेशन वर्क कर रही होती है, क्योंकि बैकअप में उनके मदर फादर्स की या दादी सा दादो सा नानी सा नानो सा की स्टोरीज़ का भंडार है, जिसे वो अब अपनी इमेजिनेशन में उतारेंगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिसर्च हैज़ सेड कि जो बच्चे ज़्यादा सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो बच्चे they are tend to incline towards writing more. So these are some of the tips. If you follow them, definitely in no time your child will start writing. And I'm telling you, you start doing these things at least for 21 days. Why 21 days? Because if we want to develop any good habit, you do it for 21 days and it will become your habit.
अगर कोई भी आपको चीज़ समझनी है, कोई करनी है, आप 21 दिन तक उसको बिना चूके आप उसे लगातार करिए, आपकी वो हैबिट बन जाएगी। तो बच्चे को कंसिस्टेंटली इतना टाइम आपको लिखना है, करना है। अगर आप वो रेगुलरली कराएंगे, इट विल बिकम देयर हैबिट। यस मैम। Yes, ma'am, I completely agree with you on your suggestions. Ma'am, I have seen during my teaching career also that a child who is writing slowly generally lags behind in the class. And this is a major concern for their parents and teachers as well. So, my next question is aiming for the slow writers. Can you please tell some remedies for the slow writers? Yes, ma'am. So, slow writers. This is a term which has been coined by us teachers and as parents. स्लो राइटर कुछ नहीं होता है. देर इज़ नो सच थिंग डिफाइंड कि आपका बच्चा इतने टाइम में इतना लिखेगा तो वो एक फास्ट राइटर है या वो एक स्लो राइटर है. हमने ये चीज़ बोल के उनके उसमें डाल दी है कि भाई यू आर अ स्लो राइटर एंड वी आर गिविंग देम नेगेटिव फीडबैक. नाउ इफ़ योर चाइल्ड इज़ अ स्लो राइटर, सबसे पहले अगर वो छोटा बच्चा है तो आप चेक करिए कि क्या उसकी मोटर स्किल्स अच्छे से डेवलप हुई हैं. अगर नहीं तो आप मोटर स्किल्स पे वर्क करिए. अगर आपका बच्चा बड़ा है और अगर वो स्लो राइटर है तो सबसे पहले आप उसकी आई साइट चेक करवाइए, क्योंकि उसे हो सकता है कि बोर्ड से कॉपी करने में प्रॉब्लम होती हो, या हो सकता है कि उसे लाइंस लोकेट करने में प्रॉब्लम होती हो. ओके, नाउ देर आर सम थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ. फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पॉस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है. हम उसको इग्नोर कर देते हैं. या तो हम बच्चे को ज़मीन पे बैठा के लिखाते हैं जिससे वो झुक के लिखेगा, उसके बैक में पेन होगा, उसके हैंड में पेन होगा. बच्चे को हमेशा आप एक स्टर्डी टेबल चेयर पे बैठा के लिखवाइए. मेक श्योर कि उसके पाँव ज़मीन तक पहुँचे और ज़मीन पे रहें, न हवा में हैंग करें, न ज़मीन पे फोल्ड हों, क्योंकि अगर फोल्ड होंगे तो अगेन वो दर्द यहाँ तक पहुँचेगा. तो एक तो आप पॉस्चर का ध्यान रखें. दूसरा आप देखें कि उसकी टेबल या पाटा या जहाँ पे भी आपने बैठा है वो डगमग ना कर रहा हो, एक स्टर्डी सरफेस हो, प्लस प्रॉपर उसमें वो प्रॉपर ब्रॉड हो, क्योंकि बुक्स की जो साइज़ होती है उसके साथ में जब वो बच्चा लिखेगा उसके ऊपर तो हो सकता है बुक्स ज़्यादा बड़ी है या वो टेबल उसकी नैरो है जिस वजह से उसको लिखने में इशू आ रहा है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू जस्ट चेक इट विद योर चाइल्ड. इसके बाद में एक आता है कि आपके बच्चे का हैंड मूवमेंट कैसा है. आप कभी नोटिस करिएगा, एंड इट यूजुअली हैपन्स, बच्चा लिखते लिखते उसका ना हाथ ऐसे टर्न हो जाता है और वो अभी भी लिख ही रहा होता है. नाउ दिस थिंग विल अगेन गिव पेन here and the kid will not take interest in writing because it is giving him a negative reinforcement. उसको एक पेन के साथ में बच्चा बहुत देर तक नहीं लिखेगा, ऑटोमेटिकली उसकी राइटिंग स्लो हो जाएगी. सो द ट्रिक इज़ मेक श्योर कि उसका हाथ इस पोजिशन में हो एंड उसकी जो नोटबुक हो, इफ़ योर चाइल्ड इज़ राइट हैंड डोमिनेंट, अगर आपके बच्चे का राइट हैंड डोमिनेंट है तो नोटबुक लेफ़्ट की तरफ टिल्ट हो, और अगर लेफ्टी है बच्चा तो राइट की तरफ टिल्ट हो. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर शुरू से आपका बच्चा लेफ़्ट हैंडेड है तो आप उसको लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पे मत लेकर आइए. हम सब चाहते हैं हमारा बच्चा राइट हैंड से लिखे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर वो लेफ़्ट हैंड से लिख रहा है तो आप उसको लेफ़्ट से लिखने दीजिए, अगर वो राइट से लिख रहा है तो आप उसे राइट से लिखने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप हैंड मूवमेंट पे ध्यान दें. नाउ इसके बाद में जो एक चीज़ जो मैंने करी थी एंड वो सच में कारगर है, वो है ये पैटर्न राइटिंग. तो मैंने क्या करा, इस तरीके से कुछ डॉटेड पैटर्न्स बना दिए और मैंने इनको टाइम बाउंड कर दिया. आप भी बना सकते हैं, आप कितना भी ऐसा छोटा पैटर्न भी बना के बच्चे को नोटबुक में बना के दे दीजिए एंड यू जस्ट फिक्स कि 30 सेकेंड्स में आई विल सी कि कितने पैटर्न बनाए. लेकिन आपको सुंदर बनाने हैं और आपकी जो पेंसिल है इससे डॉटेड लाइन से आगे पीछे कहीं नहीं जानी चाहिए. एवरी टाइम द चाइल्ड विल एक्सेप्ट द चैलेंज एंड नेक्स्ट टाइम ही विल चैलेंज हिमसेल्फ कि इस बार मैं इससे ज़्यादा बेटर करूँगा. तो ये जब पैटर्न्स, जैसे आप उसे नोटबुक में भी बना के दे सकते हैं या फिर आप ऐसी शीट्स को लैमिनेट करवा सकते हैं, आप उनको स्केच पेन से बना के दे सकते हैं. तो कलरफुल हैंड राइटिंग होएगी तो मज़ा भी उसको आएगा कि मैं कलर्स यूज़ करके लिख रहा हूँ. एंड ये मैं बड़े बच्चों के लिए बता रही हूँ जो
6, 7, 8 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनके साथ में हैंड राइटिंग फास्ट करने के लिए। जब आप पैटर्न राइटिंग ये इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है जो 4 लाइन्स की जो नोटबुक्स होती हैं, वर्टिकल लाइन्स जो खींची हुई होती है जिसमें सेक्शंस बने हुए होते हैं, वहाँ पे आप उसे, अगर आपको हिंदी की राइटिंग इंप्रूव करानी है तो हिंदी के वर्ड्स जो भी उसके सब्जेक्ट के हैं, या फिर इंग्लिश की राइटिंग इंप्रूव करानी है तो इंग्लिश के वर्ड। अब पूरा एक पेज नहीं देना है। सपोज़ आपने फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो हमने कुछ वर्ड दे दिए जैसे किसान, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, समथिंग समथिंग। अब हम उसे बोलेंगे कि एवरी वर्ड को 4 वर्ड्स या 5 वर्ड से ज़्यादा नहीं देना है और हर एक वर्ड को आपको 5 टाइम्स ही लिखना है, दैट्स इट। बट मैं अगेन यू हैव टू टाइम बाउंड देम कि आपको ये कंप्लीट करना है 15 मिनट्स में। लेट्स सी कि कौन फर्स्ट आता है, आप फर्स्ट आते हो कि ममा फर्स्ट आते हैं। वो करेगा और वो अच्छे, शुरुआत में उसकी हैंड राइटिंग गंदी होगी, फिर भी आपको वो एक बोलने का तरीका होता है, करा बहुत अच्छा है, नेक्स्ट टाइम इससे और सुंदर करने की कोशिश करेंगे, दैट वे। ये हो गई सेकंड। जब बच्चा इसमें परफेक्ट हो जाए तब आप उसकी नोटबुक में से कोई भी 3 लाइन्स मार्क करके दे दीजिए, यहाँ से यहाँ तक। अगेन यू हैव टू डू इट इन 15 मिनट्स। लेट योर चाइल्ड डू दैट एंड यू सी इन नो टाइम योर चाइल्ड विल अगेन स्टार्ट राइटिंग वेरी फास्ट। And one very important thing is consistency. If consistency will not be there, your child will not write, ma'am. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा लिखे और फास्ट लिखे तो ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली, दैट इज़ वाई इस चार्ट में मैंने संडे तक का बना के दिया है आपको कि आपको संडे को भी इंक्लूड करना है राइटिंग में, और फिर धीरे धीरे हम उन्हें क्रिएटिव राइटिंग की तरफ भी ला सकते हैं, विच इज़ अगेन समथिंग वेरी डिफरेंट। एंड लास्ट थिंग, you should always use praise instead of rewards. तो ये करोगे तो तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी कि बजाय तुमने आज इतना अच्छा करा, वाओ। आप घर के सभी मेंबर्स को जाके बताइए, उसके दादो सा, दादी सा, या अगर आप किसी से फ़ोन पे बात करें, पर से यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, यू कैन ऑलवेज टेल हर, यू नो आज इसने इतना अच्छा लिखा है कि इसने और इतना फास्ट भी लिखा है। द चाइल्ड विल गेट मोटिवेटेड। ये चीज़ें उसको लाइफ लॉन्ग पुश करेंगी हमेशा के लिए, एंड इट विल बिकम हिज हैबिट। सो दीज वर सम ऑफ द टेक्निक्स विच हैव बीन ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी ऑन माई किड्स, एंड आई एम श्योर कि अगर आप इनमें से जो भी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ रही है एक बार आप करके देखिए फॉर 21 days विदाउट एनी लूप होल, एंड यू विल सी योर किड्स राइटिंग विल बी, यू नो, ही विल टेक इट एज अ रिवॉर्ड rather than as a punishment. Yes, ma'am. Yes, ma'am, I do believe that these remedies will definitely help the parents of concern, and soon their kids will start writing and their writing speed will improve. So, ma'am, I would like to thank you. Thanks a lot for making us aware about the difficulties a child faces during writing, and thanks a lot for sharing such wonderful tricks and tips with us. I would like to thank the audience who was such wonderful audience who helped us for smooth processing of the session. Now I would like to tell you all that these tricks and tips have been tested and tried in Aditi Silver Bell School, and here यहाँ पे बिल्कुल अलग pedagogy से पढ़ाया जाता है. Here the teaching is based on storytelling, and this storytelling is and really effective. It really helps children in effective learning. So I would like the audience to, if you have any queries regarding any of the questions, you can email us, you can contact us through mail, that is rathod.aditi99@gmail.com. I repeat, rathod.aditi99@gmail.com, or you can contact us on the number 7725919949. I repeat again, 7725919949. Thank you again everyone for your valuable time, and I hope that this webinar will be very fruitful for you all, and it will be very enlightening session for you all. So with this I would like to end the session with a famous saying that where there is a will, there is a way. Everything is within your power, and your power resides within you. Thank you. Thank